آج ہمارے ساتھ ہیں جناب عبدالعزیز صاحب. آ، آج ہم پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے ان سے. اسلامک اسکالر ہیں, بہت دین کے بارے میں نالج رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنے بارے میں تھوڑا بتاتے ہیں. میرا نام عبدالعزیز گریٹ اور ہماری ابتدائی تاریخ جو گھر سے ہوا دو کے مکتب سے. یہ ایک عام لوگوں کے لیے اگر ہم بات کریں کچھ تھوڑا سا ہٹ کے جن کے اصل بھائی سے, عام لوگوں کے لیے کیا میسج ہو سکتا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اگر ہم کوئی جاننا چاہے, چاہے کوئی بھی ریلیجن کا ہو, ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس کے لیے کیا ہے اسلام کا, کیا میسج جا سکتا ہے, دیا جا سکتا ہے, بولا جا سکتا ہے کہ اچھا اسلام یہ ہے, کیا بول سکتے ہو؟ اس کے یہی ہے کہ کوئی بھی انسان ہو, اگر وہ انسان حقیقت میں اگر وہ دھرم کو اپنانے والا ہو تو ہر ایک انسان کو یا ہر ایک انسانیت کو چاہیے کہ سب سے پہلے جس دھرم کو وہ فالو کرتا ہے اس کی ریسرچ کرے اور حقیقت کو پہچان کر ہی اس پر عمل کرے. چاہے دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب ہو, اگر اسلام ہے, اگر اسلام کے اندر اگر آپ کو کوئی اس کے اندر کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو آپ آئیے سوال کیجیے. اگر اس میں کمی لگتا ہے اس کے بارے میں ریسرچ کریے, دیکھ سکے, سمجھ لیجیے. جی ایسے غلط کہانی سن کے وہ نہیں بنا, ایسا کچھ نہیں. اسلام کے اندر یہ ہے کہ جب اسلام کو اللہ نے بھیجا, یہ آخری دن ہے اسلام, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کو نبی نے لوگوں کو بتلایا, اور اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے کفار مشرکین میں سے, انہوں نے طرح طرح کے الزامات اللہ کے رسول پر لگایا, اور اللہ کے رسول نے باضابطہ طور پر ان کو جواب دیا, اور جواب دینے کے ساتھ ساتھ اسلام پیار اور محبت کے ساتھ آج تک پھیلا. تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں اگر ایک نق طرح پیغام کیا جائے تو پیغام یہ ہوگا کہ انسان حقیقت کو سچ کرنے میں کوشش ہے, اور حقیقت جب پہنچ جائے جی, اس کی رائے. اب ہم نیکسٹ سوال پہ جاتے ہیں. کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی اسلام ہے. اگر صرف نماز پڑھے ہم, باقی دنیا داری جو کرنا ہے ہم کریں, جو بھی اسلام ہے, کیا اس کو مان سکتے ہیں, اسلام سمجھ سکتے ہیں؟ اسلام ہاں, یہ بات تو ضرور ہے کہ اسلام کے بنیادی چیزوں میں سے ایک بنیادی چیز نماز ہے. نماز ہی پڑھ لینا یہ اسلام ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھی ہمدردی کرو, چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو, ان کی جو ہے دوا کے لیے ان کا پوچھ کرنا, پوچھ پاچھ کرنا, ان کا دیکھ بھال کرنا, کام کے لیے ضرورت کوئی بھی کام کے. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کام اسلام کے اندر ہے, ہر ایک ان کو اپنانا اسلام ہے. یہ بہت بڑی بات, بہت اچھی بات. اسلام میں انسانیت کا کیا بات ہے؟ انسانیت مطلب کوئی درجے میں ہے. اب جیسے آپ نے بولا کہ کوئی پرابلم ہو, دکھ دقت ہو, پرابلم ہے تو پوچھنا چاہیے, اس کو اگر کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے. انسانیت کا کیا مہتو ہے اس لیول تک؟ انسانیت سے دھرم کیا بات یا کوئی بھی دھرم ہو, بہت سے حضرات جو ہے انسانیت کو سب سے اول درجے پر رکھتا ہے. دیکھیں میں اس کو ابھی ایک ریسنٹلی آپ دیکھیں ہوں گے جو وائرل ہوا تھا, دیپک کمار بوزا ہاں, اتنا بڑا مثال بنا, اور ریئل میں وہ ریئل ایک انسان ہے. ریئل انسان. سچ میں دیکھا جائے تو اس طرح کی لوگوں کی ضرورت ہے. ایسا کروڑوں لوگ ہیں ہر ایک دھرم میں, چاہے وہ ہندو مسلم ہو, کوئی بھی ہر دھرم کے اندر ایسے لوگ ہیں. لیکن انسانیت یہ ہے کہ دیکھیے, انسانیت کسی بھی مذہب سے روکتا نہیں, اور کوئی بھی مذہب انسانیت سے نہیں روکتا ہے. انسانیت یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے, ہمارے پڑوس میں اگر کوئی بھی انسان آ جائے, اگر وہ تکلیف میں ہے یا پریشانی میں ہے, تو ہر ایک انسان کو یہ ضرورت ہونی چاہیے اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ نہ دھرم دیکھا جائے اور نہ نام پوچھا جائے, بلکہ یہ دیکھے کہ یہ بھی ایک انسان ہے. اگر اس کی جگہ پر اگر ہم ہوتے, ہمارے ساتھ اگر یہ معاملات ہوتا تو کیا ہوتا؟ انسانیت کا جو ہے یہ پیغام بہت, یہ سمجھ لیجیے کہ دنیا کا اندر یہ بہت بڑا ایک میسج جانا چاہیے کہ انسانیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. یہ طلاق کے بارے میں اسلام کا اصلی حکم کیا ہے, اور کیا طلاق 3 بار کر دینے سے طلاق ہو جاتا ہے؟ کیا نیم ہے, کیا مطلب ہے؟ طلاق کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے جدائی مانے, لیکن ہم کسی کو بھی طلاق کہہ دیں کہ طلاق کا نہیں پڑ سکتے, اس لیے کہ بھائی طلاق کا جو سسٹم ہے وہ میاں بیوی کی طرح. ہم طلاق کے الفاظ سے انسانوں کو ہمیشہ بچنا چاہیے,
लेकिन कोई भी इंसान अगर अगर अपनी बीवी को अगर सही दिल से या झूठा दिल से अगर ये कहा दे कि तुमको तलाक है, तुमको तलाक है, तो तलाक है तो तलाक पड़ जाए, लेकिन ये तरीका लगातार ही 3 मरतबा तलाक दे देना ये गलत है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में अब गज़ुल हलाल तलाक़ुहा, कि अल्लाह ने तो तलाक को जायज़ को करार दिया है, जायज़ तो कहा है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा और सबसे घटिया और सबसे बेकार चीज़ अगर कोई चीज़ है वो तलाक है। तो तलाक का जो इंसानों ने जो कंसेप्ट बना लिया है कि कोई बात हुई अपनी बीवी को तलाक दे दिया, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ किसी भी मर्द के लिए, इसलिए कि वो भी किसी के बेटी है। तलाक देने से ये होता है कि 2 घर बर्बाद हो जाते हैं। बिल्कुल, एक घर तो ये है कि लड़का घर भी बर्बाद हो जाता है, दूसरी जानिब लड़की के जो माँ बाप है उनका भी वो भी लोग परेशान हो जाते हैं कि दोनों घर बर्बादी के दहाने पर आ जाते हैं। लेकिन तलाक अगर आपको देना ही है तो उससे पहले 3 कॉन्सेप्ट है। पहला ये है कि अगर आपकी बीवी की आदत आपको अच्छी नहीं लगती है या बीवी आपके पसंदीदगी के मुताबिक आपके साथ नहीं रहती है, तो तलाक देने से पहले आप उनको नसीहत कीजिए। एक चीज़ वहाँ पे बिल्कुल आते हो, सिर्फ नहीं पसंद आने से या हमारा बात नहीं मानने से क्या उन तलाक दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं दिया जा सकता तलाक, बिल्कुल नहीं दीजिए। तलाक का मतलब है जिंदगी है, वो रफीक हयात है। हर में, दुख में, दर्द में, परेशानी में अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आप खाना नहीं बना सकते, लेकिन अगर उसको तबीयत खराब हो जाए तो वो खाना बनाकर आपको पिलाती है, बच्चों को पोसती है, पालती है, हर एक काम करती है। लेकिन जरा सी अगर उसके अंदर कमी कोताही आ जाए तो क्या हम उसको तलाक दे देंगे? वो भी एक इंसान था, इंसान है तो इंसान से ही गलतियां वो इसका तो गलत यूज भी कर सकता है, अगर जायज है रियल में जी। जायज तो है, ठीक है। और आपने ये भी कहा जायज भी है, और आपने ये भी कहा कि दुनिया में या फिर जो भी है खुदा के नजर में दुनिया का सबसे घटिया चीज भी माना जाता है। जी, बहुत बड़ी बात हो गई जी। अब सवाल उठता है, क्या कोई इस तक गलत फायदा निकाल सकता है गलत इस फायदा चीज को सुन्नत का? सवाल ठीक है आपका, इसलिए कि फायदा उठाने वाले उठा भी रहे हैं, लेकिन फायदा उठाने वाले वही लोग उठा रहे हैं जो इस्लाम के बारे में नहीं जानते। जो इस्लाम के बारे में हकीकत में अगर वो जानता है तो वो तलाक के अल्फाज तो अपनी जबान से निकलना तो दूर की बात है, वो तलाक के अल्फाज को सुनना भी गवारा नहीं करेगा। तो तलाक जो है 3 मरहले में दिया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी बीवी को समझाइए, है, समझा रहे समझाते रहे, अगर फिर भी वो नहीं मानती है तो कहा इस्लाम ने कि अपनी बीवी से आप अलग हो जाइए। अलग हो जाने से मुराद यानी एक ही कमरे के अंदर आप सोइए ना, उसके साथ जो है वो रिलेशनशिप आप नहीं बना सकते हैं। हाँ, आप गुस्सा में रह सकते हैं, मारने की इजाजत नहीं है। आपने पहले नसीहत किया, नसीहत से यानी कि उनको समझाया, समझाने से वो बात को नहीं मानती है तो आप अपने बिस्तरों को अलग कर लीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आप बेड पे सो रहे हैं तो आप जो नीचे सो जाएगी, किसी पर बेड पर सो लीजिए, लेकिन रहना एक ही घर के अंदर। अगर नसीहत किस सके, अगर वो असरदार होगी, अगर उनके अंदर जरा बराबर शर्म व हया होगी तो नसीहत करना ही एक औरत के लिए, एक बीवी के लिए बड़ी शर्म की बात हो जाती है। अगर सोचने वाली होगी तब वो शऊर वाली होगी, समझ वाली होगी, फहम वाली होगी तो बात को समझ जाएगी और अपनी आदत से वो अपनी आदत को छोड़ सकती है। ले गैर महरम का क्या कंसेप्ट है? कुछ आज के जो जमाने में लोग है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, ठीक है। वो तो ऑफिस में काम करते हैं, पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे कैसे में पेपर, या फिर कहीं किसी रिश्तेदार में जाते हैं, कैसे इसको मेंटेन करते गैर महरम से मुराद ये है कि जो अपनी नस्लों से दूर हो, समझे। गैर महरम शायद तौर पर नहीं, जो आज दुनिया के अंदर जो करप्शन गालिब है उसकी वजह यही है कि एक इंसान दूसरे के साथ ख्याल नहीं करता है। गैर महरम से मुराद ये है कि आपकी जिस तरीके से हमारी हो या आपकी, हमारी बहन है आपके लिए गैर महरम, आपके बहन हमारे लिए गैर महरम है। उनको ये चाहिए कि वो हमको देखे तो वो पर्दे में रहे, या हमारी बहन देखे तो वो पर्दा में रहे। लेकिन जो आपके सामने पर्दा न करेगी उसमें जो है 5-7 लोग हैं, उसमें एक माँ है। सिर्फ ये कि शैतान हर लोगों को पीछे पड़ा हुआ है। और आज देख लिए दुनिया का अंदर हर जगह पर जो लड़ाई हो रही है, असल मुद्दा वही है, लड़का या लड़कियों का मुद्दा ही। हैं? अभी अभी आप लोग देखते होंगे ना, इतना केस अभी इंटेलिजेंस केसेस भी है,
हर जगह देखिए कि लव जिहाद का बात चल रही है इस जगह पर। यही सब भी चल रहा हालांकि रीजन ये है कि अगर कोई भी लड़का या लड़की, अगर लड़का हो, देखिए कुरान ने सबसे पहले लड़कों से कहा, मुखातब हुआ मर्दों से, कि मर्दों की जमात अपनी निगाह को नीचे रखो। जब आपकी निगाह उसको नहीं पड़ेगी और वो पर्दे में रहेगी और उसकी निगाह आपकी तरफ नहीं आएगी, तो जाहिर सी बात है कि वो हमसे राब्ता में हो सकती है, कांटेक्ट में, ना हम उनके कांटेक्ट में आ सकते हैं। मेन मुद्दा ये है कि बेपर्दगी ने लोगों के दरमियान में खलफशात पैदा कर दिया। इसको कैसे इस्लाम जिसको रोकता है, उसको रोकने की वजह यही है कि इस हिजाब को अपनाया जाए, चाहे जो भी हो। लेकिन मुसलमानों के लिए हिजाब नहीं है, पर्दा कोई सबके लिए हिजाब है। इसलिए आज के टाइम पे तो कोई इसको मत या नहीं बोलेगा कि ये तो गलत है, हम इसको क्यों पहने, हम भाग्य पिंक चल रहे हैं, हम ऐसे करेंगे। ना मानने वालों के लिए कुछ भी नहीं हो, कुछ भी कर सकता है। हाँ। अब उसको जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, हम उनको बतला सकते हैं कि ये काम करो, इसमें फायदा है, और अगर ये काम न करने से आपके लिए फायदा नहीं है, तो फायदा और गैर फायदा दोनों चीज आपके सामने में, आप जो चाहे आप इख्तियार कर सकते हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग कहते हैं स्कैम या जो भी मुस्लिम के पीछे इस्लाम में टेररिस्ट रिलीजन है, क्या है कुरान में इसके बारे में या हदीस में, क्या टेररिस्ट रिलीजन है, या फिर ज्यादा लोग इसी में टेररिस्ट या गलत काम काहे करते हैं, क्या रीजन ऐसा ही कि बोलते हैं आतंकवाद क्यों है ज्यादा इस्लाम में, क्या रीजन है नहीं, और इसमें कुरान में क्या मतलब है इसका, ये सही है गलत है क्या है? देख लीजिए, आतंकवाद का मतलब होता है यानी कि दंगा फसाद करना, लेकिन इस्लाम के अंदर वो चीज है नहीं। लोगों ने इस्लाम को टेररिस्ट के नाम पे बदनाम किया है। उसके मेन मुद्दा ये है कि अगर एक इंसान मजलूम है, एक इंसान जालिम है, लेकिन वह जालिम पर हाथ को रोकने के लिए कोई इंसान खड़ा होता है, तो उसको टेररिस्ट में उसको नाम आ जाता है। लेकिन हमें ये देखना है कि कोई भी इंसान कोई भी काम करता है, इस्लाम के बारे में हो या किसी भी इंसानियत के बारे में हो, या कोई भी एक इंसान, आप मजलूम है, अगर आपके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, इस्लाम के फरमान है कि तुम मजलूम की मदद करो और जालिम की मदद करो। जाहिर सी बात है, यहाँ पर लोग घबरा गए, तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह का रसूल, क्या हम जालिम की मदद करें और मजलूम की मदद करें? तो कहा क्या कैसे? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो, जालिम की मदद करो, उनको रोको, और मजलूम की मदद इस तरीके से करो, उनके साथ खड़े होकर उनकी इमदाद करो। ये इमदाद करना क्या लोगों के दरमियान में टेररिस्टिज्म इस्लाम ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर कोई है, अगर सपोज जी है नहीं, तो उसको क्या कहा नहीं है इस्लाम, सभी के चैनल है क्या है? इस्लाम में टेररिस्ट नहीं है, और जो टेररिस्ट है वो इस्लाम में है। तो टेररिस्ट और इस्लाम है ही नहीं रियल है। बिल्कुल नहीं। इसलिए कि इस्लाम का मानी होता है कि अमन का पैगाम देना, सलामती का पैगाम देना, भाईचारे का पैगाम देना, इंसानियत का पैगाम देना। और इस्लाम के अंदर ये सब चीजें और ये सब सबक सिखाई जाती हो। जो हिंसा करता है उसको क्या बोलता है इस्लाम, क्या कर सकते हैं, क्या बोलेगा उसको? तो सजा ही देनी चाहिए। इस्लाम भी सजा देता है। सजा कोई भी हो, अगर वो गलतियां क्या है तो उनको गलतियों का एहसास करनी पड़ेगी और गलतियों पे उनको सजा देनी पड़ेगी और सजा लेनी पड़ेगी, कोई चाहे जो भी हो। इस्लाम के अंदर ये नहीं कहा गया कि मुसलमान है और कोई गैर मुस्लिम है, उन दोनों के दरमियान कोई बात हो जाए। इस्लाम ये नहीं कहा कि तुम मुसलमान का साथ दो, ये भी नहीं कहा कि तुम गैर मुस्लिमों को साथ दो, बल्कि कहा इस्लाम ने कि जो सच्चा है, जो सच्चाई पे है, जो हक पे है, उनका साथ दो। कि ये बातचीत सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं थी, ये एक आईना थी जिसमें हम सभी को देखना चाहिए, समझना चाहिए। वो किसी भी रिलीजन का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, उसको समझने की बात है। आप जब तक समझेंगे नहीं, सच्चाई जानेंगे नहीं, तो आज के ज़माने में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप जो भी है, यूट्यूब है, उस पर सही गलत सब कुछ मिलता है। बस आपको सही चीज़ सर्च करना है। हाँ, ये थैंक यू सो मच, शुक्रिया कि आपने वैल्यू एंड टाइम दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। व्यूअर्स को दिल से सुन लिया, यहाँ तक देखिए हमारा वीडियो, और आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए।